guys, I am Prashita Patel and I am from the Symposium Club of VIIT. So for today's guest lecture, we would like to invite some guest who is very multi-talented, and she is the first Indian adventure sport photographer, a filmmaker, and also a rock climber. She has directed her own film, which is Project Wild Women, and has won the Best Documentary Award at Kenya International Sports Film Festival. It has also won People's Choice Award at London Mountain Film Festival. I can go on and on about her achievements, and also apart from that, she has worked as a content executive at Network 18, who is there inspiring every Indian woman. With great pleasure, I would like to welcome Miss Kopal Goyal. Thank you for having me in Thank you, Symposium. ma'am. Yes. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. I hope your family is safe during this pandemic. Yes, we are actually safe. This village is currently in lockdown position, but Okay, yes, we are safe, thankfully. that's good. And basically, so the motive of our club, the motive of Simmeet is that we gather people from different domains and they come together at this platform. They share their life stories, and it's an open platform, so we put up the stories and it is very encouraging and inspiring to everyone out there. It's encouraging to the youth. So this is the actual motive of Simmeet. So, ma'am, one question, it's like everyone has it in their mind. Currently, like our generation, it's very confused, like what they want to do in life and everything. We don't actually have a clear idea about what we want our career to be. So, what was it that made you feel to take this exciting career option, and which motivated you to take this up? So, from the very beginning in my career, when I had no idea about if I'll be doing this, what I'm doing now, I wanted to do something different in my life. And that is why I took up to journalism. And after that, as you said, that I worked for Network 18 as content executive, and at that time I remember I felt like नहीं अभी मुझे ये नहीं करना है. I am not here to sit on the desk for like 8 hours and go home and sit sleep without even thinking about me if I want to do this or if I am actually achieving what I want to achieve in my life. So मेरा वो क्विक डिसीजन था. मैंने जॉब को क्विट किया एंड आफ्टर दैट आई जॉइंड रॉक क्लाइंबिंग एंड आफ्टर दैट व्हेन आई वाज देयर सब सारी चीजें मेरी चेंज हो गई. मेरे पर्सपेक्टिव मेरा विजन चेंज हो गया. मुझे लगा कि व्हाई डोंट आई एक्सप्लोर दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट विद माय कैमरा बिकॉज क्लाइंबिंग में ऐसी थी कि there were few climbers in India but people didn't know about them. So I started exploring climbing in from my angle, from my point of view, and उसको लेकर के मुझे लगा कि नहीं अभी ये मेरा करियर भी हो सकता है. और आई नो कि people are confused about their career option. They think that सबसे पहले तो ये टिपिकल सी चीजें आ जाती है बीच में कि everyone wants to be in the crowd. No one wants to do something different in their life. चाहे वो कुछ भी हो. हर मतलब उनके पेरेंट्स उनको समझाते हैं कि अच्छा तुम ये कर लो and they are like okay हम ये कर लेते हैं. They don't have enough courage to go on their own with their own passion. So हाँ मेरा वही था. मतलब जब मैंने क्लाइंबिंग ज्वाइन की तो मुझे लगा कि मुझे ये एरिया को एक्सप्लोर करना है विद माय ओन पर्सपेक्टिव, विद माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड वो एरिया अनएक्सप्लोर्ड था पूरी तरीके से. लोग नहीं जानते थे कि देयर आर फ्यू पीपल हु आर क्लाइंबिंग, हु आर डूइंग दीज थोड़ा हटके काम इन देयर ओन फील्ड. तो मुझे वो उस टाइम पे बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू हाउ टू हैंडल कैमरा बिकॉज ऑफ I did my journalism course.
एज अ बैचलर्स। तो फिर मैंने इसको अपना करियर ही बना लिया उस टाइम पे, और मैं फुल टाइम फिर क्लाइंबिंग, पार्ट टाइम क्लाइंबिंग, पार्ट टाइम फिल्म मेकिंग कुछ ऑप्ट किया मैंने अपनी लाइफ में। हाँ। So, as you said, so what made you lose your interest as content executive at News 18? तो जब मैं नेटवर्क 18 में जॉब कर रही थी, फुल टाइम जॉब, और मेरा शेड्यूल था कि मैं सुबह आती थी, 8 आवर्स जॉब करके वापस घर पे जाती थी। मतलब मेरे पास बिल्कुल अपने करियर के बारे में, अपने पैशन के बारे में, मुझे क्या एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, क्या नहीं करना है, वो बिल्कुल टाइम नहीं होता था मेरे पास सोचने के लिए। और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि मुझे अपनी लाइफ ऐसे स्पेंड नहीं करनी है। तो मैंने डिसीज़न लिया जॉब क्विट करने का, और उसके बाद जो भी मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी की, कुछ उसके थ्रू मुझे रॉक क्लाइंबिंग के बारे में पता चला। तब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसी कुछ चीज़ें हम इंडिया में कुछ एथलीट्स जो कि इन सारे स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब मैं उसमें खुद इन्वॉल्व हो गई एज अ रॉक क्लाइंबर, एज अ लाइक आई यूज टू प्रैक्टिस स्पोर्ट्स, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब यहाँ पे लोग इनको जानते ही नहीं है बिल्कुल। मतलब जब भी मैं इंटरनेट पे सर्च करती थी ऐसे सारे स्पोर्ट्स के बारे में, तो हमेशा एक फॉरेन फेस दिखता था मुझे, कभी भी इंडियन फेस नहीं दिखता था। और यही बोल करके मुझे लगा कि नहीं, अभी मेरे पास ये चांस अच्छा है कि मुझे अपने कैमरे के थ्रू ये सारी चीज़ें, ये सारी स्टोरीज़ को बाहर लाने का मेरे पास मौका है। और तभी से मैंने इसमें अपने पैशन को मिक्स किया और फिल्म्स बनाने स्टार्ट किए। मेरी पहली फिल्म थी गणेशा 8B+, जो कि इंडियाज़ हार्डेस्ट क्लाइंबिंग रूट के बारे में है। और उसके बाद जो भी मुझे लोगों से प्रेज़ मिला और मुझ में जो भी नए आइडियाज़ डेवलप हुए, उसको लेकर के फिर मैंने प्रोजेक्ट वाइल्ड वुमेन, अगला प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर किया, और ये फिर मेरा करियर भी बन गया एक तरह से। Right now, many of my friends and many people, everyone's like pretty interested in rock climbing. So, what would you like to say? Like, what would you give someone a suggestion how to start with rock climbing, or how did you begin your career in rock climbing? सो रॉक क्लाइंबिंग के लिए सबसे पहले तो देयर आर सो मेनी things which one has to keep in mind while he thinks to join this sport. First, there are so many indoor climbing gyms in India nowadays. When I joined climbing, there were very few climbing gyms, but now there are so many. Like if I talk about Delhi, then there are like almost 3 or 4 climbing gyms. In Mumbai, there are 2 or 3 gyms, indoor climbing gyms, where you can go and practice. Because before going outdoor, you should at least be comfortable with holds and other climbing techniques, like other climbing techniques which you use for climbing. So yeah, एक बार indoor climbing gym के experience हो जाए और you are comfortable with taking falls and you walk on your fear, तो you are ready to go for outdoors. तो अभी outdoors में हमारे पास बहुत सारे options हैं, like there are so many places for outdoor rock climbing. To gain outdoor rock climbing experiences, like you can go to Badami, you can go to Hampi, and those places are really meant for climbers. Like when you go to those places, you will be amazed to see how, like, the types of boulders that places have. एंड यहाँ पे भी 2 चीजें होती है कि अभी आपको, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाइंबिंग जनरली. वन इज स्पीड क्लाइंबिंग, सेकंड इज बोल्डरिंग, एंड थर्ड इज हील क्लाइंबिंग. अभी जब वो कोई भी अननोन पर्सन जाता है इन सारी, उसको रॉक क्लाइंबिंग करनी है, तो उसको आइडिया लगता है कि अच्छा ये तीनों में क्या डिफरेंसेस है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो आगे के करियर या फिर आगे की चॉइसेस को ऑप्ट कर सकता है. एंड दैट अप्लाइज सेम फॉर आउटडोर सेशंस आल्सो. एंड अभी तो ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे मतलब हर ईयर बहुत सारे इंडिपेंडेंट पर्सन जो कि क्लाइंबर्स है, वो लोग क्लाइंबिंग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, so that you can go and experience and also climb with those experienced climbers and learn so many things. तो इस तरीके का एक पैटर्न होना चाहिए अगर कोई भी नया इंसान इसको क्लाइंबिंग करनी है तो. So usually nowadays what happens, ma'am, that
people don't get support from their family because they want them to choose different careers, or when they tell them that they want to take something apart from the mainstream courses, they don't really support them. So what was it that you got, what kind of support you got from your family or friends when you told them that you don't want to work as a content executive and start with rock climbing? क्योंकि रॉक क्लाइंबिंग बहुत नया स्पोर्ट्स है इंडिया में। हालांकि ये ओलंपिक्स में आ चुका है, बट अभी भी इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इसको नहीं जानते हैं। तो वैसे जब मैंने रॉक क्लाइंबिंग ज्वाइन किया था तो मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत नया स्पोर्ट्स था। इनकी वजह से उनको समझने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को कभी देखा नहीं था अपनी आंखों से, और सुना भी था, फोटोग्राफ से प्रॉपरली देखे नहीं थे। तो ऑटोमेटिकली कुछ प्रॉब्लम्स तो मेरे साथ आ गई थी, क्योंकि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, लैक ऑफ नॉलेज वहाँ पे था। फिर एक जो अगर वुमेन कोई ऐसे स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस कर रही है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें तो टिपिकली आ ही जाती है, न जाने ना चाहो तो फिर भी। जैसे अभी तुम्हारी एज होगी, तुम शादी कर लो, तुम लड़की हो, ये कैसे स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करोगी, तुम्हारे पास इतना स्ट्रेंथ कैसे आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें अटैच हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ तो प्रॉब्लम है। अभी जब मैंने प्रोजेक्ट वाइल्ड वुमेन बनाने स्टार्ट की, उससे पहले मुझे इन्हीं सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी कि कोई मुझे समझ नहीं रहा था। इसकी वजह से मेरे पास सपोर्ट्स नहीं थे। और सेम चीज़ ना कि सिर्फ मेरे साथ बल्कि और वुमेन एथलीट्स के साथ भी होती है, गर्ल्स एंड वुमेन जो कि ऐसे स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रही है, जैसे स्केट बोर्डिंग हो गया, लॉन्ग बोर्डिंग हो गया, फिर कायाकिंग हो गया, चाहे कोई भी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ये सारी प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या इम्पोर्टेंट है। आपको ये इम्पोर्टेंट है कि आप सोसाइटी क्या कह रही है उन बातों को सुनो, और बाकी अपने सारे पैशन को एक साइड रख करके सैक्रिफाइसेस करके आप उनके हिसाब से चलो, या फिर दूसरी साइड आपका जो पैशन है आप उनको उसको समझो, रियलाइज करो कि आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, और फिर उसके हिसाब से आप अपना करियर का आगे जो भी आपको स्टेप्स लेने वो लो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो सबको आएंगी, ना कि सिर्फ मेन, ना कि सिर्फ वुमेन, बल्कि मेन को भी ये प्रॉब्लम है। उनको भी सपोर्ट नहीं मिलती, उनकी भी फैमिली नहीं समझती है। बट कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं जो कि वुमेन के साथ ही होती है सिर्फ। तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए मिलकर के, जहाँ पे हम मेन एंड वुमेन दोनों एक दूसरे को समझे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, और ऐसे स्पोर्ट्स को ग्रो करें साथ में, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक जेंडर दूसरे जेंडर से दूर होता जाएगा, और ऐसे करके एक जो गैप बनेगा फिर वो हेल्दी गैप नहीं है। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, इन शॉर्ट प्रॉब्लम्स तो आएंगी डेफिनेटली। बट अब आपको रियलाइज करना है कि आपको प्रॉब्लम के साथ जाना है कि उसका सोल्यूशन ढूंढ के आपको सोल्यूशन को फॉलो करना है अपनी लाइफ में। You had filmed your own documentary, which was Project Wild Women. So, what major role does it play in your life right now? Project Wild Women definitely has a lot of importance in my life, because through this documentary I am highlighting women who are practicing extreme and gravity sports in India, and not just this, with all those societal problems, how they are keeping up with their passion, and why it is important to create your own identity, work on yourselves. And at the same time, I'm also consciously trying to give another message, which is why it is important for men and women to come together and create a common space where anyone and everyone can practice, regardless of age, gender, and social stigmas. Yes. So, ma'am, like your experience, like what you've told, it's been really motivating, and definitely it's going to be inspiring to everyone out there. And personally, I have found it very inspiring. So, what are your upcoming projects or adventures you would like to share with us? मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस ट्रैकिंग स्पॉट है जिसका नाम कोकनकाड़ा है, और लोनावला से 2 क्लाइंबर्स जिनका ये ड्रीम है उस फेमस ट्रैकिंग स्पॉट को क्लाइंब करना, और कैसे वो अपने इस ड्रीम को अचीव करते हैं, और उन्हें इस ड्रीम को अचीव करने के लिए जो 4 साल का समय लगता है, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको ओवरकम वो कैसे करते हैं। तो पूरी फिल्म इसके बारे में है। इसका ट्रेलर ऑलरेडी यूट्यूब पर है, आप कोकनकाड़ा सर्च करो, आपको ट्रेलर मिल जाएगा। और साइड बाय साइड प्रोजेक्ट वाइल्ड वुमेन को रिलीज करने की भी तैयारी चल रही है। तो मैं
मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इन दोनों प्रोजेक्ट्स को आपके सामने लाने के लिए।